خبر شامل کرتے ہیں خان بلا سے ڈی پی او رحیمیہ خان کی ہدایات پر ڈی ایس پی سرکل لیاقت پور اللہ یار سیفی کی نگرانی میں تھانہ شیدانی شریف کے ایس ایچ او ملک سلیم کی 1 ماہ کے اندر کارروائی، جس میں خطرناک جرائم پیشہ ڈاکو گرفتار اور ان سے بھاری مقدار میں منشیات، اسلحہ، چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد۔ خان بلا تھانہ شیدانی شریف کے ایس ایچ او سلیم درگ کی 1 ماہ کے اندر کارروائی، جس میں مختلف مقدمات کے خطرناک جرائم پیشہ ریکارڈ یافتہ افراد سے بھاری مقدار میں اسلحہ، موٹر سائیکل برآمد اور اس کے علاوہ عادی مجرم منشیات فروش میں سے ایک ملزم سے 1800 گرام چرس، دوسرے سے 94 لیٹر شراب دیسی برآمد، تیسرے سے 101 کپیاں شراب۔ اس طرح ایک اور ڈاکو سے 2 عدد موٹر سائیکل مالیتی 2,50,000 روپے بھی برآمد اور اس طرح کارروائی کرتے ہوئے 10 عدد 30 بور ماں 45 روند، دوسرے سے 30 عدد پستول 12 بور 30 کارتوس، چوتھے سے 1 عدد ریپیٹر 12 بور 7 کارتوس برآمد کرتے ہوئے ملزمان کو جیل منتقل کر دیا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی سرکل لیاقت پور اللہ یار سیفی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایس ایچ او کی 1 ماہ کی اچھی کارکردگی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے بہت کم وقت میں دن رات محنت کرتے ہوئے جرائم پیشہ افراد کا خاتمہ کیا اور جن لوگوں کے نقصانات ہوئے ان مالکان کو ان کی اصل ریکوری واپس کی۔ حاصل پور سے ہمارے نمائندہ یعقوب رضا کی رپورٹ کے مطابق جامعہ مسجد گلزار مدینہ اولڈ بس سٹینڈ حاصل پور القدس کے موقع پر خطیب اہل سنت علامہ حافظ بشیر احمد کی ایس ایچ او تھانہ سٹی حاصل پور عدنان چودھری، محمد ناصر، رام ملک، خالد ضیاء، نذیر احمد چوہان نے دستار بندی کی اور انہیں تحائف پیش کیے۔ علامہ حافظ بشیر احمد اور جماعت اہل سنت کے ناظم اعلیٰ ذوالفقار علی قائم خانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ حفظ قرآن دراصل محافظ قرآن اور دین کے نگہبان ہوتے ہیں۔ حضرت علی کی پیدائش کعبۃ اللہ میں اس لیے ہوئی کہ ان کی شادی بی بی فاطمہ سے ہونا تھی۔ اگر دلہن نبی کے گھر کی تھی تو پھر دلہا خدا کے گھر کا تھا۔ حضرت علی باب علم تھے۔ حضرت علی خدا کے گھر میں پیدا ہوئے اور خدا کے گھر میں شہادت پائی۔ انہوں نے کہا کہ خدا کے حکم کے نافرمانی کر کے ایک سجدہ نہ کر کے مقرب فرشتہ شیطان بن گیا اور بارگاہ الہی سے راندہ گیا۔ آج ہم نہ جانے کتنے سجدے نہیں کر رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں کاموں کی سے تھانہ وانڈو سے محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق بعض سرفراز نے محنت کش محمد ارشد نامی شخص پر بہیمانہ تشدد کر کے بازو توڑنے کا واقعہ کاموں کی تھانہ وانڈو کے علاقہ دندیا میں گزشتہ چند روز قبل گھر کے قریب ہی سجیل امانت، یاسر امانت اور محمد عظیم رائفل لے کر مجھے آتے ہی غلیظ گالیاں دینا شروع کر دی۔ میرے منع کرنے پر رائفل کے بٹ مارنے اور شدید تشدد سے میرے بازو کی ہڈی توڑ دی۔ شور کی آواز سن کر میرا بیٹا بھی وہاں آ گیا۔ ملزمان نے اسے بھی زد و کوب کرتے ہوئے سر پر رائفل کے بٹ مار کر شدید زخمی حالت میں جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے۔ مضروب نے قانونی چارہ جوئی کے لیے رزلٹ حاصل کرنے کے لیے سرکاری اسپتال گئے تو وہاں پر موجود ڈاکٹر فیصل نے مبینہ طور پر ملزمان سے بھاری رقم لے کر معمولی رزلٹ دے کر مضروب نے اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملزمان بااثر ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی کر کے داد رسی کی جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں پاک وطن سے ہمارے بیورو چیف سیٹھ ظفر اقبال کی رپورٹ کے مطابق پاک وطن تحریک انصاف خواتین ونگ کی جانب سے عظیم النشان تقریب حلف وفاداری اور افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ پاک وطن نجی میرج ہال میں پاکستان تحریک انصاف خواتین ونگ کی جانب سے ایک عظیم النشان تقریب حلف وفاداری افطار ڈنر منعقد کی گئی، جس میں مرکزی صوبائی اور ضلعی رہنما سمیت خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی جنرل سیکریٹری ویسٹ پنجاب نہید نیاز وٹو نے نو منتخب ضلعی صدر پاک وطن شمسل سجاد ڈوگر، جنرل سیکریٹری زاہدہ سلیم بیگ اور دیگر عہدیداران سے حلف لیا۔ اس موقع پر ضلعی صدر پاکستان تحریک انصاف ریاض ارشد خان نیازی، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ مرکزی رہنما ملک اشرف بھی موجود تھے۔ نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد پیش کی گئی۔ میری ایک بہن پہلے کہہ کے گئی ہے، سیاست کا وقت نہیں ہے، اب عمران خان صاحب۔ حسن علی رانا کی رپورٹ کے مطابق ننکانہ صاحب پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے عہدیداران کی ننکانہ صاحب میں صحافیوں سے گفتگو۔ ہمارا مشن اخلاقیات کی سیاست کو فروغ دے کر ون ایجنڈا ملک پاکستان کے مفاد کی خاطر خدمت کی سیاست۔ تفصیلات کے مطابق ننکانہ صاحب میں مرکزی مسلم لیگ کے عہدیداران نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ خدمت کی سیاست کو فروغ دیں گے۔ صحت، تعلیم اور انصاف کے اداروں میں اصلاحات کر کے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ حکمرانوں نے قرضے لے کر ملک کو اس کے بوجھ نیچے دبا دیا ہے۔ کبھی بھی قرضے لے کر معیشت میں استحکام پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا واحد حل خود انحصاری اور کفایت شاری کی پالیسی کو اپنا کر اور اپنے وسائل
कार बरोए कार लाकर मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकाला जा सकता। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे तो हमें इंसाफ के निज़ाम को बेहतर करना होगा और इसकी शुरुआत अपने आप से करना होगी। शिरका से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क की नामूर पार्टियां सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी को परवान चढ़ा रहे हैं। सोशल मीडिया पर नौजवानों को टेक्निकल एजुकेशन फराहम करके माशी तौर पर मजबूत किया जाए। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाह जमान न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सदर जाकिर खान, तहसील शाह आलम ताजर इंसाफ की क़यादत में मस्जिद अक्सा की हिमायत में रैली निकाली गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई कि द मुमिनानो मिसाल दास तयो बदन दे कदा बदन पकमा हिस्सा हम दर्द या तकलीफ राशि टोल बदन ना करार रवि दगा से मिसाल तमंग द मुसलमानानो दे पकार दादा कि पकम जिकिम प मुसलमान बाती तकलीफ राशि पकार द टोल आलम इस्लाम त दगा तकलीफ महसूस शी चौक रिंग रोड पर और तहसील शालम ताजिर इंसाफ सदर जाकिर खान और यहाँ ज़ाहिर शाह साहब और तमाम ताजिर इंसाफ के कारकुनान यहाँ जमा हैं। उनकी क़यादत में यहाँ एक बड़ी एहतजाज हुई है। इसराइल की जो जुल्म सितम शुरू है फ़लस्तीन पर, उसके ख़िलाफ़ उनसे बात करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप लोग के सब इल्म में है कि कुछ दिन पहले यहूद मलऊन अस्कर ने जिस तरह हमारे मुसलमान भाइयों पे जो जुल्म और सितम का बाज़ार गर्म किया हुआ था, तो ये सिर्फ़ फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस का मसला नहीं था, ये हमारा ईमान का मसला था और हम अपने ईमान पे किसी के साथ समझौता नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमें ये पैगाम मिला है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके हम उम्मती है। हमारे पैगम्बर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने कई बार जिहाद में ख़ुद तशरीफ़ फरमा है और उसके दान मुबारक भी जिहाद में शहीद हो गई है। तो हम उसी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारा वही जज्बा है, आज भी हमारा वही ईमान है और आज भी हम इंशाअल्लाह इसी पे कायम व दायम हैं। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ तहसील शालम ताजिर इंसाफ के सदर जाकिर खान जिसकी क़यादत में ये एहतजाज हुआ है। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाह जमान न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त ताहिर 4 सद्दा चप्पल मेकर नदीम प्लाजा रोड पर मौजूद है। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है दलजाक रोड और बिल्कुल नदीम प्लाजे में ताहिर शॉप के साथ ही खड़े हैं। अंदर जाएंगे, ताहिर शॉप में बहुत रश नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि मुख्तलिफ इलाक़ों से लोग आए हुए हैं। वहाँ जाएंगे और लोगों से भी बात करेंगे और आपको मुख्तलिफ क्वालिटीज़ भी दिखाएंगे कि इस साल नए नए कौन कौन से रंग आए हुए, कौन कौन से क्वालिटी आए हैं और नर्ख भी बताएंगे क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। तो गाहक से भी बात करेंगे कि क्या हाल बस दे ताहिर दुकान आओ خوخي من شوي ده طاهر نه مخکې بتا سوداګر څه شکایت خو نه راځي یاره بس دا پړاچینار کې چا صفت کړو بس دې پسې رالو مخکې ته وړي مونږ پړاچینار راغلي دې سره ما نو مخکې مونږ وړي چا بس هغه بس مې دا واغسته دا سپلای دا راکې بس 2500 روپے کې راکې ویلي 3000 روپے ډیسکاونټ یو ډېر بس ته اوریجنل چیز دا کوي کپڑے مرسه شیخه زبردست دي بلکړ والا ته څه پیغام ورکړي بس ټول ته دا وایم چې دا ځي خدي دلته راشي او سودا والے خپخ نر پوري ورکي سټرونټان دا وایم چې هایلی ریکمندډ اور ام ریلی سټیسفاید فرام دیس زرداری ډیزاین راغلی نوې ها نوې ډیزاین پېښور زلمیم او جی پېښور زلمیم راغلی ها دا کوم ډیزاین راغلی دا زرداری دی دا پنجدارو کې دی پنجدارو کې نوې او جی شوقیان شته او جی ډېر او جی نوې ډیزاینونه راغلي دي موږ سره دام دی وګوره پېښور زلمی غونته کې دا ډیزاین دی دا شی دی صحیح شو بل را سره راغلی دی دا کلر پکې راغلی دی دا هم را سره نوې دی دا وګوره صحیح شو دا غې نه پس بیا دی خو دا راغلی دي دا رنګونه دي
دا ټول رنګونه را سره دي کنه صحیح شو دا جی موږ سره شته کلرونه دي کې خډیر دي موږ سره هر یو کلر کې قیمت نه والا زیات قیمت ده پورې سو پورې دا جی موږ دلته کې شته 25000 روپے پورې شته 35000 روپے شته 4500 روپے 1500 نه دي اوس چې دا کومه ګرانی راغله دا اوس لکه زیات دغه کنه دي کې 25000 روپے موږ سره پکې او دام نه ویم جوړ کړی دي دام وګوره دام پکې ښه کلر دی صحیح شو دا ټول رنګونه را سره دا جی د دې چې د دې 4500 روپے قیمت صحیح شو جی دا دا مختلف ریټونه دي جی خپل نوم راته وایي او دا دکان څه پوزیشن دی گاګ څه پوزیشن دی زه خپل طاهر مینون دی او شکر الحمدلله گاګ خبر برابر راځي څه مشکلات موږ د نشته نو ګرانی دا قیمتونه به اوچت شوي نو گاګ څه شکایت نه کوي نه جی بس گاکان راځي موږ له ښه کوالټي ورکړې ده او همیشه را بدل تر راغلي دي نو گاګ موږ پتا کې هغه باندې چړي چې کم مناسب څونه ګران شوي دي هغه مناسب مو ته ګران کړل سب لې راغلي موږ خو دیر نه راغلیو دیرنا ماشاءالله صرف سپلوله سپلوله بس راغلی په خبر ده طاهر دکان ته بالکل مخکې راغلی کنه نه مخکې نه راغلی ته پیلا ځل یاره ما سره سپلای خو ډېر مزدار سپلای ده اخلي او بس اخلو ان شاء الله خیر ته کم زین زوم د دیر نه راغلی او چې دیر نه راغلی او سپلای خو خوښ او سپلای مخ خوښ خدي او ډېر مزدار دي راغلی ورور موږ په خبر یو صدر سم واغستل کنه خو نه خو خو لګیایو او سب طبيعت تم پریوزي ډیزاین او ډېر ډیزاینونه دي تاسو چرته راغلی زما د پېښور یو نوم څه دی حماد نوم دی زما حماد خان انت خو جانگیر پورم شته نه منډیم شته طاهر دکان ولې بیسیکلی دوی نه مونږ ډېر ټایم نه اخلو کنه دوی کوالټي ډېره ښه ده دی وجه شکایت اوسه نه بالکل نه بالکل زه خلکو ته دا پیغام چې یو ځل کم از کم وزټ کی ټیک شو دوی سره یو خدای چې کوالټي مسله ډېره ښه ده ډیزاین هم مسله ډېر وي نو مسله راشي وزټ د کی د دوی شاپ امید ده چې مطلب سیټسفاइड وزې دي زنه खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी से डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज ईद उल फितर में ज़िला भर को साफ़ सुथरा और शहरियों को खुशगवार माहौल की फराहमी के लिए पुरअज़म डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत कमेटी रूम में ज़िला कौंसल और MCs के CEOs का इजलास मुनक़िद हुआ। DCR शर्जील हफीज़ वटू और ADCG कुदसिया नाज भी इजलास में मौजूद थी। तमाम अवामी पार्क्स की बेहतरी सफाई की जाए, शहर और मुज़ाफ़ात में सफाई की ख़ुसूसी मुहिम शुरू की जाए, सीवरेज ड्रेनेज के मसाइल के हल के लिए स्टाफ और मशीनरी स्टैंड रहेंगे, पानी की छिड़काव और चूने की लाइनें लगाकर अमल रोज़ाना की बुनियाद पर होगा, पार्कों की तज़य्यन और आराइश में ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी, अवाम को तफरीह के लिए पुरफ़िज़ा और खुशगवार माहौल की फराहमी MCs की अवलीन जिम्मेदारी है। फैमिली पार्क की तज़ीन और आराइश शुगर मिल्स इंतजामिया रजाकाराना तौर पर करवाएगी। DC लिया ने मजीद कहा है कि स्टाफ से ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक खिदमात हासिल की जाएँ, तमाम अमूर की निगरानी के लिए सरप्राइज विजिट करूँगा। खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी से दफ्तर पुलिस में रैंक पिनिंग तकरीब। DPO लिया असदुर्रहमान ने तरक्कीयाब होने वाले पुलिस अफसरान को इनके ओहदे के बैज लगाए और इन्हें मुबारकबाद दी। DSP हेडक्वार्टर फयाज अहमद भी इनके हमरा थे। DPO लिया असदुर्रहमान ने तरक्की याब होने वाले सब इंस्पेक्टर्स, ASIs और हेड कांस्टेबलान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा है कि महकमा पुलिस में सर्विस करना खासा मुश्किल है। अक्सर औकात असाब शिकन हालात का भी सामना करना पड़ता है। आए रोज नित नए चैलेंजेस से भी नबरदाज़मा होना पड़ता है। ऐसे हालात में सख्त मेहनत के बाद तरक्की नसीब होती है। तरक्की पाने के लिए दिन रात मेहनत काबिल सताइश है। आप लोगों पर आज से नई महकमाना जिम्मेदारियां आयद होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप नेक नियति, ईमानदारी और लगन के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और महकमा पुलिस के वकार में इजाफे का बायस बनेंगे। तरक्की पाने वालों में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अख्तर, जावेद इकबाल, गरीब आलम, असगर अली, ASIs मोहम्मद इकबाल, शाहिद इस्लाम, मदा हुसैन, आदिल फ़हीम, वज़ीर बीबी, जबकि हेड कांस्टेबलान में मोहम्मद ज़फ़र, मोहम्मद अमजद, आबिद हुसैन, मोहम्मद असगर, रुबीना ज़फ़र शामिल हैं। खबर शामिल करते हैं मुनकेरा से। हमारे नुमाइंदे मुसव्वर हयात जखड़ की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेटर थल केनाल का 6 माही पानी पीरियड शेड्यूल 15 अप्रैल से शुरू हो चुका है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से पानी नहीं छोड़ा जा रहा। जिला इंतजामिया ने भी खामोश इख्तियार कर रखी है। किसान सरापा एहतजाज हैं। किसानों की खरबूजा, तरबूज, कपास, मकई, चारा जात वगैरह की फसलें तबाह हो रही हैं। आला काम फौरी नोटिस लें।
खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जिला जनरल सेक्रेटरी और उम्मीदवार PP 143 सरदार सरफराज अहमद डोगर ने कहा है कि रियासत की बका के लिए हुक्मरान इत्तेहाद की सियासत का ताबूद नाबूद करना होगा, क्योंकि कोई माफिया काबिल माफी नहीं। अफसोस तख्त इस्लामाबाद पर बरजमान नैब जरदगान रियासत की बजाय अपनी मुनाफकाना सियासत बचा रहे हैं। इनकी सियासत का जनाजा उठाने का वक्त आ पहुंचा है। नाअहल हुक्मरानों को आइन और अदालत के साथ अदावत का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अदलिया के खिलाफ मुहिम जोई के मामले में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सोच में कोई फर्क नहीं, यकीनन इन दोनों का अंजाम भी मुख्तलिफ नहीं होगा। एक खानदान से दो अफराद का नाअहल होना एक मुनफरिद रिकॉर्ड हो सकता है। आम इंतखाबात के सिलसिला में आइन में कानून बहाम नहीं, अवाम हुक्मरानों की पसंद के पाबंद नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर हों तो अच्छा होगा। तख्त इस्लामाबाद बराजमान नैब जदगान को अपनी पसंद नापसंद के तहत आइन में नकब लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आइन शिकनी में मुलव्वस हुक्मरानों का आइन की गोल्डन जुबली मनाना कौम के साथ एक मजाक है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 137 के सीनियर नायब सदर, साबिक मेंबर जिला कौंसल और उम्मीदवार PP 138 हाजी तारिक महमूद डोगर ने कहा है कि हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम इकदामात बरोए कार ला रही है। जो हालात आज मुल्क के हैं इसकी जिम्मेदार इमरान खान हैं, जिन्होंने अपने 4 साला दौर इक़्तिदार में अवाम को सवाए महरूमियों के कुछ नहीं दिया। इनके किए की सजा आज अवाम भुगत रही है। इसी वजह से सख्त फैसले करना हुकूमत की मजबूरी है। उन्होंने कहा कि आने वाला मुस्लिम लीग नून का ही है कि अवाम पागल खां के इरादों से बखूबी आगाह हो चुके हैं। अपने 4 साला दौरे हुकूमत ने इमरानी टोले ने मुल्की माशियत की बुनियादों को खोखला कर दिया है। PDM की हुकूमत वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत इमरानी टोले का गंद साफ करने में मसरूफ, मगर हम हिम्मत नहीं हारेंगे और अवाम के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। शेखुपुरा से आपको आगाह करते चले। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के जिलाई सदर चौधरी एहसान नवाज विर्क ने कहा है कि शहदा की वरासत सिक्योरिटी फोर्सेस काबिल रश्क है। पुलिस फोर्स के प्रोफेशनल ऑफिसर्स और अहलकार शरपसंद अनासर के खिलाफ सरहकफ हैं। अवाम इन्हें अपनी दुआओं और वफाओं का महवर बनाए रखें। कोई जिंदा कौम अपने शहीदों, गाजियों और जांबाजों को फरामोश नहीं कर सकती। हमारे मुहाफिज हमारा सरमाया इफ्तिखार हैं। हम इनकी वफाओं का कर्ज हरगिज नहीं उतार सकते। जो हकाम और अहलकार काम के दौरान जामे शहादत नोश करते हैं, कौम इन पर नाजा है। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान रेंजेस, FC पुलिस और रेल पुलिस की इज्जत और इनके साथ भरपूर तावन करना शहरियों का फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ शनास पुलिस एहलकार अमन अमान के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोई इदारा 100% गंदी मछलियों से पाक नहीं हो सकता, लेकिन इसके बावजूद अवाम अपने रियासती इदारों और महकमों की मजमूई तौर पर काबिल कदर कारकर्दगी को देखते हुए समीम कल्ब से इनकी इज्जत करेंगी। जिस वक्त अवाम ईदीन की नमाज अदा कर रहे होते हैं या कोई दूसरा मजहबी या कौमी त्यौहार मना रहे होते हैं। शेखुपुरा से आपको आगाह करते चले। अहले सुन्नत वल जमात के जिलाई सदर हाफिज मोहम्मद इशफाक गुजर ने कहा है कि क़याम पाकिस्तान के साथ ही जनूबी एशिया में कश्मीर तनाज़ा और मशरकी वस्ती में फ़लस्तीन की सरजमीन पर यहूदियों की नाजायज़ आबादी मुसल्लत करके तवील अलमियाद साजिश की जा रही है। भारत भी झूठ, तशद्दुद और इस्लाम दुश्मन कुव्वतों का सहारा लेकर कश्मीरियों को जुल्म का निशाना बना रहा है और अमेरिका, यूरोप अपनी साजिशी थ्योरीज और एजेंडे के मुताबिक फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर काबिज मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर माह रमज़ान में जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रहा है। इसराइल नाजायज़ रियासत है और भारत का जम्मू कश्मीर पर भी कब्जा नाजायज़ है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की बका इसी में है कि भारत के मज़मूम अज़ाइम के खिलाफ डटा रहे और इसराइल को किसी सूरत तस्लीम ना किया जाए। कश्मीर और फ़लस्तीन मसला पर पाकिस्तानी हुकूमत की पॉलिसी मशकूक हो रही है। पार्लियामेंट में पॉलिसी करारदाद के जरिए दो टोक मौक़िफ़ का इजहार किया जाए। इत्तेहादे उम्मत और आलमी इस्लाम का दफ़ाई, इक़्तिसादी और खारजा मुहाज़ पर एक एजेंडा नागज़ीर है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिलाई नायब सदर मकबूल हुसैन जट ने कहा है कि इलेक्शन के लिए फंड्स जारी करने से मुतालिक हुक्म पर वजीर आजम और काबीना ने अमल नहीं किया। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर वजीर आजम और काबीना अरकान नाअहल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि वफाक फंड्स जारी करके सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा हुक्म यह था कि IG पंजाब और सेक्रेटरी सिक्योरिटी प्लान देंगे। अगर सिक्योरिटी प्लान ना दिया तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि हुक्मरान टोला इमरान खान की क़यादत में खड़ी पूरी कौम से खौफजदा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में हकीकी आज़ादी का सफ़र जारी रहेगा।
निगरान हुकूमत को गैर जामदार होना चाहिए। नवाज शरीफ वतन वापस आकर मुकदमात का सामना करें। नवाज शरीफ के भाई वजीर आज़म हैं, किस बात का डर है, अवाम का सामना करें। उन्होंने कहा कि पीटीआई के कारकुनों का सियासी इस्तेहसाल किया जा रहा है। पीटीआई के कारकुनों के घरों पर पुलिस छापे मार रही है और नाजायज़ गिरफ्तारियां की जा रही हैं। आपकी निगरान हुकूमत पीटीएम की तौसीम में है, मगर इन सब इकदाम से तहरीक इंसाफ के कारकुनों के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक ब्लड बोलोमेनिनेशन बानी शेख इमरान साहिब और कामी खान, डिप्टी ताहिर खान, जदून यूसुफ खान, शेख इमरान साहिब का कहना है कि दिन रात इंसानियत की खिदमत के लिए हाजिर हैं। आप भी आएँ और हमारी टीम का हिस्सा बने। जिसने एक इंसान की जान बचाई, इसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ जुमेरात 24 नवंबर 2022 को वजीर आजम हाउस में जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जुम्मे को कहा है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मुल्क की तकदीर का तयन कर रहे हैं। पाक फौज पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के सफर में इनका भरपूर साथ देगी। आर्मी चीफ ने भी एतराफ़ किया है कि कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP से बात करना एक गलती थी। वो कौमी असम्बली के अरकान से कैमरा इजलास में गुफ्तगू कर रहे थे ताकि उन्होंने मौजूद सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया जा सके। गुज़िश्ता साल नवंबर में आर्मी चीफ बनने के बाद जनरल आसिम मुनीर की कानून साजों को ये पहली ब्रीफिंग थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ DGI SIDG मिलिट्री ऑपरेशन और आला अस्करी हकाम IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, वफाक सेक्रेटरीज दाखिला, खारजा, खजाना, दफा और नशरियात, चारों सूबाई वज़राए आला, चारों सूबों चीफ सेक्रेटरीज और IGs ने अजलास में शिरकत की। पुलिस के इन कैमरा मीटिंग में शिरकत की। ये भी पढ़ें, दहशत गर्दों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए फौजी ऑपरेशन ब्रीफिंग का एहतमाम। मुल्क में दहशत गर्दी के 12 सर उठा के पास मंजिर और हुकूमत की जानिब से इस लानत को रोकने के लिए एक नई मुहिम शुरू करने का हालिया फैसले के तनाजुर में किया गया था। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल SJC में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के खिलाफ आइन के आर्टिकल 209 और जजेस कोड के खिलाफ वर्जी पर रेफरेंस दायर कर दिया गया है। तर्ज अमल ये रेफरेंस मारूफ वकील मियां दाऊद एडवोकेट ने चीफ जस्टिस बंदयाल, जस्टिस एजाज अल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के खिलाफ दायर किया था। जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने आइन के आर्टिकल 209 और जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के सेक्शन 3 से 6 और 9 के खिलाफ वर्जी पर। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अटार्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान को जुम्मे को सुप्रीम कोर्ट की समाअत से पहले सूबाई इंतखाबात के लिए फंड्स जारी करने में हुकूमत की नाकामी के बाद तलब किया। इस माह के शुरू में अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब में इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले को गैर आइनी करार दिया था, जिससे हुकूमत को एक धचका लगा था, जो सिक्योरिटी मसाइल और माशी बहरान का हवाला देते हुए सूबाई इंतखाबात में ताख़ीर की कोशिश कर रही है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और पुर्तगाल दरमियान BPC का तीसरा दौरे लिस्बन में मुनक़िद हुआ। AFS यूरोप M सलीम और DG फॉरेन पॉलिसी रुई नहास ने मुश्तरका सदारत की। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। तजारत और सरमायाकारी, ज़राअत, पानी के इंतज़ाम, ICT, ब्लू इकोनॉमी और ग्रीन टेक्नोलॉजीज में मावन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।